اور آگے دیکھیے ارم خان اور ترنم جہاں کے ساتھ ہماری اسپیشل رپورٹ۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس عیسیٰ کی مثال آدم کی طرح ہے، جسے مٹی سے پیدا کر کے کہہ دیا گیا ہو جا، بس وہ ہو گیا۔ اور ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بی بی مریم سے بنا باپ کے پیدا ہوئے، اور یہ اللہ کی قدرت سے ناممکن نہیں ہے، جس کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے یہ کہتا ہے کہ کن یعنی ہو جا، بس وہ ترنت ہو جاتی ہے۔ تاریخ کے ریگستان پر وقت کے نقشے بنتے اور مٹتے رہتے ہیں، لیکن اسی ریگستان پر کچھ ایسی عظیم ہستیوں کے پاؤں پڑے جن کے نقش رہتی دنیا تک رہیں گے، اور دنیا انہی پاؤں کے نشانوں کے پیچھے پیچھے چل کر اپنی منزل کا پتہ ڈھونڈے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہی عظیم ہستیوں میں شامل ہیں۔ آپ کا اس دنیا میں ظہور کیسے ہوا؟ زندگی کے دور کیسے گزرے؟ اللہ نے اپنا نبی بنانے کا فیصلہ کیسے کیا؟ آپ نے اپنے کردار، سیرت اور بصیرت کو کیسے پیش کیا؟ معجزوں کا اظہار کیسے ہوا؟ لوگوں کی مسیحائی کیسے کی؟ ان تمام سوالوں کا جواب آپ کو آگے ملنے جا رہا ہے۔ آداب، میں ہوں ارم خان۔ آداب، میں ہوں آپ کے ساتھ ترنم جہاں شیخ۔ آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ایک بے حد ہی خاص پروگرام، جس کے لیے ہم ایک خاص جگہ پر بھی پہنچے ہیں، جو ہے دلی کا کیتھولک چرچ۔ دراصل پوری دنیا میں کرسمس کی دھوم ہے۔ کرسچنز اس دن کو عیسیٰ مسیح کے جنم دن کے طور پر مناتے ہیں۔ ایسے میں یہ دن دنیا بھر میں عیسائیوں کے لیے سب سے بڑا دن ہو جاتا ہے۔ لیکن جیسا کہ آپ سب جانتے ہوں گے کہ عیسائی مذہب میں جنہیں عیسیٰ مسیح کہا گیا، انہیں اسلام میں عیسیٰ علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ تو آج اس خاص دن پر ہم حاضر ہوئے ہیں اس خاص پیشکش کے ساتھ۔ ہم آج آپ کو بتائیں گے داستان عیسیٰ مسیح، اور ساتھ ہی ساتھ ذکر کریں گے عیسائی مذہب میں آپ کا مقام کیا ہے۔ عمران کے خاندان پر خدا بہت مہربان تھا۔ ایک بار حضرت عمران کی بیوی نے عرض کیا، اے میرے پروردگار، میرے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کے ہونے پر میں اسے تیری بارگاہ میں پیش کروں گی۔ تو سب کچھ سمجھتا اور جانتا ہے، میری طرف سے اس ہونے والے بچے کو قبول کر۔ خدا نے عمران کی اہلیہ کی دعا قبول کر لی۔ کچھ دن بعد ان کے یہاں ایک چاند سی بیٹی پیدا ہوئی، یہ بچی بے انتہا نورانی۔ اب پھر عمران کی اہلیہ نے دعا کیا، اے خدا، میں نے اس بچی کو پیدا کیا، اسے اور اس کی اولاد کو تیری بارگاہ میں پیش کرتی ہوں۔ خدا نے خوشی خوشی اسے قبول کر لیا۔ بچی کا نام مریم رکھا گیا۔ مریم کی پرورش کون کرے؟ اب اس سوال پر خوب چرچا ہوئی۔ کئی لوگ مریم کی پرورش کرنے کا حق پانے کے لیے خوش ہو اٹھے۔ خدا نے کہا، اچھا، آپ سب کے نام کا ایک ایک قلم دریا میں چھوڑا جاتا ہے، جس کا قلم بہاو کے خلاف چل کر اوپر کو چڑھے گا، اسے ہی مریم کی پرورش کا ذمہ دیا جائے گا۔ اللہ کے حکم کے مطابق سب لوگوں نے اپنے اپنے تیر چھوڑے۔ حضرت زکریا کا تیر ندی کے بہاو سے الٹا اوپر کو بہنے لگا، اور سب کے تیر بہاو کے ساتھ بہہ گئے۔ بس حضرت زکریا کو ہی مریم کی ذمہ داری سونپ دی۔ زکریا مریم کے پاس جب جاتے تو ان کے پاس کھانے کی کئی طرح کی چیزیں رکھی ہوئی پاتے۔ ایک دن زکریا نے پوچھا، اے مریم، یہ کھانے کی چیزیں تمہارے پاس کہاں سے آتی ہیں؟ مریم نے جواب دیا، یہ سب چیزیں خدا کی یہاں سے آتی ہیں، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ فرشتوں نے ایک دن مریم سے کہا، اے مریم، تم کو اللہ نے پسند کیا اور دنیا کی سب عورتوں سے بہتر سمجھتے ہوئے تمہیں چنا۔ تم اپنے پروردگار کے حکم کو مانتی رہو اور اس کے آگے سر جھکاتی رہو۔ فرشتوں نے آگے کہا، اے مریم، خدا تمہیں اپنے اس حکم کی خوشخبری دیتا ہے کہ جلد ہی تمہارے بیٹا ہوگا اور اس کا نام ہوگا عیسیٰ۔ تمہارا بیٹا اس دنیا میں اور اگلی دنیا میں بھی عزت پائے گا اور خدا کے نزدیک بندوں میں سے ہوگا۔ وہ پالنے میں بھی اور بڑا ہو کر بھی سب کے ساتھ اچھی طرح سے برتاؤ کرے گا۔ فرشتوں کی بات سن کر مریم بولی، یا میرے پروردگار، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟
लड़का कैसे पैदा होगा, जबकि मुझे तो कभी किसी मर्द ने छुआ भी नहीं। मरियम की बात सुनकर अल्लाह ने बहुत खुश होकर कहा, मरियम तुम घबराओ नहीं, मैं जो चाहता हूँ वो होकर ही रहता है। मैं जिस चीज को पैदा करना चाहता हूँ उसके लिए कह देता हूँ कुन, यानी हो जा, और वो हो जाता है। मरियम तुम्हारा बेटा पैगंबर होगा और वो दुनिया में आते ही कहेगा, मैं तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारे लिए निशानियां लेकर आया हूँ। मैं मिट्टी की चिड़िया की शक्ल बनाकर फूंक मार दूं तो वो उड़ने लगे। मैं खुदा के हुक्म से नाबीना की आंखों में रोशनी ला दूं, मरीजों को शिफा दे दूं और मुर्दों को जिंदा कर सकता हूँ। तुम जो कुछ खाकर आओ वो और जो तुमने घरों में जमा कर रखा है वो सब तुम्हें बतला दूं। ऐ मरियम, तू उस बच्चे की सब बातों पर यकीन करना। इससे कुछ दिन बाद ही मरियम ने एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चे का नाम ईसा रखा गया। वहीं क्रिश्चियंस के मुताबिक ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश को लेकर काफ़ी इख्तलाफ है। एक तारीख है कि उनका जन्म 4 से 6 ईस्वी फ़िलिस्तीन के शहर बैतलहम में हुआ था। इनके वालिदैन नाज़रत से आकर बैतलहम के बस गए और फिर यहीं पर उनका जन्म हुआ था। इनकी वालिदा का नाम मरियम और वालिद का नाम यूसुफ था। इनके वालिद यूसुफ पेशे से पढ़ाई थे। ईसाई मजहब में माना जाता है कि परमेश्वर के संकेत से यूसुफ ने मरियम से शादी की थी। यीशु के जन्म के 2 साल बाद ही उनके वालिद का इंतकाल हो गया और उनका लालन पालन उनकी वालिदा मरियम ने किया था। क्रिश्चियंस के मुताबिक ईसा मसीह के 13 साल से 30 साल तक की ज़िंदगी के बारे में ज़्यादा जानकारी मौजूद नहीं है। इसके बाद 30 साल की उम्र में उन्होंने यूहन्ना से तालीम हासिल की। इसके बाद मज़हब फैलाने के काम में जुट गए। इब्ने मरियम यानी मरियम का बेटा ईसा अलैहिस्सलाम। उनकी पैदाइश एक मौजज़ा, उनकी ज़िंदगी एक मौजज़ा। दुनिया में भी ईसा अलैहिस्सलाम की मिसालें पेश की जाती हैं। उनके मौजज़ों को याद करते हुए गालिब साहब ने कह दिया, इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई, शरअ आइन पर मदार सही, ऐसे कातिल का क्या करे। अल्लाह ने हर नबी को उस ज़माने के मुताबिक मौजज़े अता किए, यानी चमत्कार करने की सलाहियत अता की, ताकि दुनिया वालों को ये पता चल जाए कि अल्लाह का नबी आम शख्स नहीं होता, हम और आप जैसा इंसान नहीं होता है। इसी तरह हजरत ईसा को भी अल्लाह ने मौजज़े अता किए। सबसे पहला मौजज़ा तो यही है कि हजरत ईसा बगैर बाप के पैदा हुए और उसी रोज़ अपनी माँ मरियम की गोद में बोलने लगे। वहीं सूरह मरियम में जिक्र है कि जब अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को माँ की गोद में बोलने की ताकत दी तो उन्होंने सबसे पहले यही बात कही, बच्चा बोल उठा कि मैं अल्लाह ताला का बंदा हूँ, उसने मुझे किताब दी है और मुझे अपना नबी बनाया है, और हम इस बात पर यकीन रखते हैं कि अल्लाह ताला ने उनको ऐसी निशानियों के जरिए हिमायत दी जो उनकी सच्चाई का पता देती हैं। सूरह अल इमरान में अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया कि उन्होंने बनी इसराइल से कहा, और मैं तौरात की तस्दीक करने वाला हूँ जो मेरे सामने है, और मैं इसलिए आया हूँ कि तुम पर कुछ उन चीज़ों को हलाल करूँ जो तुम पर हराम कर दी गई हैं। ईसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के बारे में कुरान और हदीस की रोशनी के हवाले से इल्म होता है कि अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा को नाबीना को रोशनी देने की ताकत अता की, मिट्टी के गारे से परिंदा बनाने का, उसमें फूंक मारकर उसे जानदार बना देने का मौजज़ा अता किया। हज़रत ईसा अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को जिंदा किया करते थे। उन्होंने अपनी नबुवत के दौरान 4 लोगों को जिंदा किया था। सूरह अन-निसा में जिक्र हुआ और उन्होंने ना तो उसे मारा और ना ही उसे सूली पर चढ़ाया, बल्कि उसके लिए एक और शख्स को उसके जैसा बना दिया गया। और जो लोग इस पर इख्तलाफ करते हैं वो इसके बारे में शक और शुबहे में हैं। उन्हें इसके बारे में सिर्फ अंदाजे के मुताबिक कुछ पता नहीं है, और उन्होंने उसे नहीं मारा बल्कि अल्लाह ने उसे अपने पास उठा लिया। यहूदी ईसा अलैहिस्सलाम के मौजज़ात पर यकीन नहीं करते थे, जबकि वो उन मौजज़ात को अपनी आंखों से देखते भी थे।
इधर हज़रत ईसा का कोई घर बार नहीं था। वो शहर शहर जाकर अल्लाह के दीन को फैलाने का काम किया करते थे। उनकी शोहरत में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा था, जिससे उनके मानने वालों में भी इजाफा हो रहा था। कहा जाता है कि उस ज़माने में पलातीस नाम का एक शख्स हुकूमत किया करता था, जिसके पास जाकर यहूदियों ने हज़रत ईसा की शिकायत की और कहा कि उनके मानने वालों में तेज़ी के साथ बढ़ोतरी हो रही है। शिकायत सुनने के बाद बादशाह ने हज़रत ईसा को कत्ल करने और सूली पर चढ़ाने का हुक्म सुना दिया। हैरानी की बात यह है कि हज़रत ईसा की चंद करीबियों में एक शख्स ही गद्दार निकला, जो यहूदियों के लिए काम कर रहा था। ऐसे में उसको राजा ने किसी चीज़ का लालच देकर कहा कि हज़रत ईसा को शहीद करना है या दूसरों से करवाना है। चंद सिक्कों के लिए बिकने वाला शख्स चंद यहूदियों और बादशाह के सिपाहियों को हज़रत ईसा के ठिकानों के बाहर ले गया। उसने उन्हें बाहर ही ठहराया और ख़ुद अंदर चला गया। इस्लामी अकायद के मुताबिक उसी वक्त अल्लाह ने हज़रत ईसा को ज़िंदा आसमान की तरफ उठा लिया था, जिसे वहाँ मौजूद उस गद्दार ने भी देखा। वो हैरत में पड़ गया, परेशान होने लगा और उसी लम्हे अल्लाह ने उस शख्स को ही हज़रत ईसा का हमशक्ल बना दिया। अपने आप को हज़रत ईसा की शक्ल में देखकर अब वो और परेशान हुआ, पूरी तरह से बौखलाने लगा, चिल्लाने लगा। फिर बाहर निकले, बाहर खड़े होकर सैनिकों के पास वो पहुंचा। यहाँ खड़े सैनिकों ने उसे देखते ही समझा कि वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है। सैनिकों ने उसकी एक ना सुनी और उसे फ़ौरन पकड़ लिया। सैनिकों ने उसे कैद करके रवानगी अख्तियार की। वो शख्स उन्हें चिल्ला चिल्ला कर बताता रहा कि मैं तुम्हारा साथी हूँ, लेकिन उसकी किसी ने ना सुनी। वो लोग कहते रहे कि ए ईसा, तूने हमारे साथी को कत्ल कर दिया और अब हमें धोखा देना चाहता है। सिपाहियों ने हज़रत ईसा के हमशक्ल को पकड़ा और रस्सी में जकड़कर उस सलीब यानी सूली तक ले आए, जिस पर वो हज़रत ईसा को चढ़ाना चाहते थे। उस शख्स ने खूब मुखालफत की, चीख पुकार की, लेकिन उसकी ना सुनी गई। उसे सूली पर चढ़ाकर कत्ल किया गया। मुसलमानों का यकीन है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत से पहले फिर दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे। सूरह आले में अल्लाह ताला ने फरमाया, ए ईसा, मैं तुम्हें वापस बुलाऊंगा और अपनी तरफ उठाऊंगा और तुम्हें काफिरों से पाक करूंगा और तुम्हारे पैरोगारों को क़यामत तक काफिरों पर फजलियत दूंगा। फिर तुम मेरी तरफ लौट कर आओगे और मैं तुम्हारे दरमियान इस बात का फैसला कर दूंगा जिसमें तुम इख्तलाफ कर रहे थे। सूरह आले इमरान में जिक्र है, और याद करो जब अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ ईसा, मैं तुम्हें ले जाऊंगा और अपने पास उठा लूंगा। मैं तुम्हें इनकार करने वालों से बचाऊंगा और तुम्हारे पैरोकार को क़यामत के दिन काफिरों से ऊंचा रखूंगा। फिर तुम सब मेरी ही ओर लौटोगे और मैं तुम्हारे सारे झगड़े सुलझा दूंगा। इस आयत का मानी यह है कि हजरत ईसा को अल्लाह ताला उठा लेंगे और उनका मकसद पूरा हो जाएगा। ऐसी कई हदीसें हैं जो उनकी वापसी से ताल्लुक़ रखती हैं। इसी तरह से सही बुखारी में आता है कि
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है उसकी जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, मरियम का बेटा ईसा अलैहिस्सलाम जल्द ही तुम्हारे दरमियाँ एक मुनसिफ हुक्मरां की हैसियत से उतरेगा और वो सलीब को तोड़ देगा, जंजीरों को ख़त्म कर देगा और जिज़्ये को मनसूख कर देगा। उसके बाद बेशुमार दौलत हो जाएगी और फिर कोई भी सदक़ात कबूल नहीं करेगा। उस वक्त एक सजदा इस दुनिया और उस दुनिया में जो कुछ है उससे बेहतर होगा। अल बुखारी ने हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम उस वक्त कैसे होंगे जब अल मसीह मरियम के बेटे तुम्हारे दरमियान होंगे और जबकि तुम्हारा इमाम तुम में से होगा। सही मुस्लिम की एक और हदीस जिसे हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रिवायत किया है, में फितनाए दज्जाल और मुसलमानों को भ्रम में डालने वाली और उन आँखों को धोखा देने वाली शक्तियों का जिक्र किया है। ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल का भी जिक्र करती है। वो हवाओं के जरिए लाए गए तूफानों की तरफ लोगों के पास आएगा और लोगों को बुलाएगा अपनी इबादत की तरफ, और वो उस पर ईमान लाएंगे और उसकी दावत कबूल करेंगे। वो आसमान को हुक्म देगा और वो बरसेगा, जमीन से कहेगा और वो उगाएगी। उनके जानवर उनके पास लौट आएंगे, जबकि उनके लंबे लंबे बाल होंगे और उनके थन दूध से भरे होंगे, उनके पेट मोटे होंगे। फिर वो अलग किस्म के लोगों के पास जाएगा और उन्हें बुलाएगा अपनी इबादत की तरफ, तो वो उसकी पुकार को मुस्तरद कर देंगे। वो उन्हें छोड़कर चला जाएगा। जब ये लोग सुबह सोकर उठेंगे तो गरीबी की हालत में होंगे और अपना सारा सामान खो चुके होंगे। वो रेगिस्तान से गुजरेगा और उससे कहेगा अपने खजाने निकाल दे, और उसके खजाने उसका पीछा मक्खियों के झुंड के मानंद करेंगे। वो एक मर्द को बुलाएगा जो पूरी तरह जवान होगा और उस पर तलवार से एक चोट मारकर 2 टुकड़े कर देगा, और इस तरह वो उन टुकड़ों को अलग करेगा, इतनी दूरी में जैसे कि शिकारी और शिकार के बीच होती है। फिर वो इस मरे हुए आदमी को पुकारेगा और वो आ मौजूद होगा और उसका चेहरा खुशी और हंसी से चमक रहा होगा। उसके बाद जब दज्जाल के साथ ये सब कुछ हो रहा होगा, अल्लाह अल मसीह यानी ईसा अलैहिस्सलाम मरियम के बेटे को नाजिल फरमाएगा। वो दमिश्क शहर के पूरब के एक सफ़ेद मीनार के पास उतरेंगे। उन्होंने ऐसे कपड़े पहन रखे होंगे जिसका रंग हल्का केसरी होगा और उनके हाथ 2 फरिश्तों के परों पर होंगे। जब भी वो अपना सर नीचे की तरफ करेंगे तो बूंदें गिरेंगी। जब भी वो अपना सर ऊपर की तरफ उठाएंगे तो कीमती पत्थर जो मोतियों की तरह होंगे गिरने लगेंगे। ईसा अलैहिस्सलाम की सांस से कोई भी काफिर नहीं बच पाएगा जो उनकी वहाँ तक पहुँचेगी जहाँ तक उनकी नज़र पहुँचेगी। वो दज्जाल का पीछा करेंगे और फ़िलिस्तीन के शहर लुद तक पीछा करेंगे जहाँ वो उसे मार देंगे। लोगों का एक गिरोह जो दज्जाल के शर से बच गया था ईसा अलैहिस्सलाम के पास से गुजरेगा और वो ईसा अलैहिस्सलाम उनके चेहरों पर खूबसूरत तेल लगाएंगे और उन्हें जन्नत में उनके मर्तबे के बारे में खबर देंगे। जल्दी ही जबकि ईसा अलैहिस्सलाम के साथ ऐसा हो रहा होगा, अल्लाह उन पर जाहिर करेगा, मैंने मेरी मखलूक में ऐसे लोगों को पैदा किया जिनसे कोई भी लड़ने की ताकत नहीं रखता, इसीलिए मेरे बंदों को अत्तूर सिनाई में मौजूद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का पहाड़ पर इकट्ठा करो। फिर अल्लाह याजूज और माजूज को उठाएगा और वो बड़ी तेजी से हर छोटी पहाड़ी से निकलकर बड़ी तादाद में इकट्ठा होंगे। उनकी आगे वाली फौज की टुकड़ियां तबारिया की झील पर पहुंचेंगी और उनका सारा पानी पी जाएंगी। उनकी आखिरी टुकड़ी जब वहां से गुजरेगी तो कहेगी, इस झील में कभी पानी हुआ करता था। इसी दौरान ईसा अल्लाह के पैगंबर अपने साथियों के साथ मुश्किल हालत में पड़ जाएंगे, यहाँ तक कि उनके लिए बैल का एक सर तुम्हारे 100 दिनारों से बेहतर होगा। ईसा अल्लाह के पैगंबर अल्लाह को मदद के लिए पुकारेंगे और अल्लाह अल-नगफ याजूज और माजूज के गलों में भेज देगा। सुबह आएगी और वो सारे के सारे ऐसे मर जाएंगे जैसे कि एक जिस्म की मौत होती है। इसके बाद ईसा अल्लाह के पैगंबर अपने साथियों के साथ नीचे उतरेंगे। वो पाएंगे कि जमीन पर उनकी चर्बी और सड़े से एक हाथ पर जमीन भी खाली नहीं है।
ईसा अल्लाह के पैगंबर अपने साथियों के साथ अल्लाह से दुआ करेंगे। अल्लाह ऐसी चिड़ियाएं भेजेगा जिनकी गर्दन ऊंट के बराबर बड़ी होंगी। वो उनको उठा कर ले जाएंगी और उन्हें वहां फेंक देंगे जहां अल्लाह चाहता है। उसके बाद अल्लाह ऐसी बरसात भेजेगा कि कोई भी मिट्टी या जानवर की खाल से बना घर उससे महफूज नहीं रह पाएगा और ये जमीन को ऐसे साफ कर देगा जैसे कि आईना। अल्लाह जमीन को हुक्म देगा, अपने फल उगाओ और अपनी बहारों को फिर से हासिल करो। फिर ये गिरोह एक अनार से खाएगा और उसकी खाल में पनाह लेगा। दूध की बरकत होगी इतनी ज्यादा कि दूध देने वाली ऊँटनी इतना दूध देगी कि वो एक बहुत बड़े गिरोह के लिए काफी होगा। इस दौरान अल्लाह की एक पाक हवा चलेगी और जो मुसलमानों को उनकी बगलों से काबू कर लेगी और हर मुस्लिम और ईमान वाले की रूह कब्ज कर लेगी। सिर्फ गुनाहगार बाकी रह जाएंगे। वो गधों की तरह बेशर्मी से खुलेआम हम बिस्तर होंगे। उन पर फिर क़यामत बर्पा होगी। जो कोई भी इस हदीस पर गौर करता है तो उस पर यह साफ हो जाता है कि ईसा अलैहिस्सलाम लौट कर आएंगे, वो हुकूमत करेंगे और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत की इत्तिबा करेंगे। कई हदीसें इस तरफ इशारा करती है कि उनके मुसलमानों के खलीफा से गुफ्तगू होगी, यानी कि मुसलमानों का खलीफा इमाम पहले से मौजूद होगा और ये कि ईसा अलैहिस्सलाम इस्लामी रियासत के शहरी भी होंगे। इससे फिर इस बात का इशारा मिलता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वापसी तभी होगी जब खिलाफत मौजूद होगी। इससे हमें दोबारा उसके क़याम की कोशिश करने के लिए हौसला और तरग़ीब मिलती है, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम उस वक्त तक नहीं आएंगे जब तक खिलाफत कायम ना हो। यह हदीस साफ तौर पर यह बात वाज़ेह करती है कि खिलाफत रियासत एक ढाल होगी दज्जाल के फितने से। यही सबब है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खलीफा उनके लिए एक ढाल है, वो उसके पीछे से लड़ते हैं और उसके जरिए उन्हें हिफाजत मिलती है। अगर वो अल्लाह से डरने का हुक्म देता और इंसाफ करता तो उसके लिए अजर है, और अगर वो किसी और चीज का हुक्म देता है तो ये आखिर में उसके लिए नुकसानदेह होगा। वही ईसाई मजहब के अकायद के मुताबिक हज़ारों साल पहले गुड फ्राइडे के दिन ईसा मसीह को यरूशलेम की पहाड़ियों पर सूली पर चढ़ाया गया था। इसके बाद गुड फ्राइडे के तीसरे दिन यानी पहले संडे को ईसा मसीह दोबारा जिंदा हो गए थे। पुनर्जन्म होने के बाद ईसा मसीह करीब 40 दिन तक अपने शागिर्दों के साथ रहे थे, लेकिन ईसाई तबके में भी इसे लेकर इख्तलाफात हैं, क्योंकि ईसाई मजहब में ये भी मान्यता है कि ईसा मसीह स्वर्ग की सेनाओं के साथ साथ चर्च के साथ पृथ्वी पर मसीहाई राज्य स्थापित करने के लिए वापस आएंगे। उनका राज्य 1000 साल तक चलेगा। इस दूसरे आगमन पर मसीह विरोधी को आग की झील में डाल दिया जाएगा और शैतान को 1000 साल तक के लिए बांध दिया जाएगा।